जय श्री राम जी। स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली आज थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम थी, सो दैट्स व्हाई लाइव क्लास नहीं हो पाई आप लोगों की। कोई बात नहीं, आज हम जो है ऐसे काम चलाते हैं। कल हम लोगों ने स्टडी किया था 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, और 3.4 एक्सरसाइज के दौरान आपको ये बताया गया था कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो एंड column elementary transformation method. Either we have to use the row elementary or we have to use the column elementary. Clear? उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बताए गए थे कि 2 into 2 ऑर्डर और 3 into 3 ऑर्डर के अंदर किस तरह से हम लोग इनवर्स निकालते हैं। आज हम बात जो कर रहे हैं वो चैप्टर थर्ड की मिसलेनियस के बारे में बात कर रहे हैं, और चैप्टर थर्ड की मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि लेट A is a matrix of order 2 where the row first is 0 1 0 0. Then show that AI plus BA whole raised to power n is equals to A raised to power n into I plus n into A raised to power n minus 1 into B, where I is the identity matrix of order 2. And this one main चीज ये है बेटा, and this one n belongs to n. आप लोग ना 11th क्लास में क्वेश्चन स्टडी कर चुके थे, कंसेप्ट स्टडी कर चुके थे, द PMI, द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वहां आपको बताया गया था कि whenever a series is to prove for all the natural numbers, whenever a series is to be proved for all the natural numbers, then we always use the concept of PMI. और हमें भी ये प्रूव करना है कि ये पूरा क्वेश्चन इक्वल है जब n किससे बिलोंग करेगा, n से। मतलब दिस सीरीज इज वेरीफाइंग when n is a natural number, जब n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। सो दैट्स व्हाई यहां पर आपको ये सीरीज सभी नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई करके चलनी है। सो इसलिए हम लोग यहां क्वेश्चन को पीएमआई के कांसेप्ट से सोल्व करके चलेंगे। बट ध्यान सुनना, इट्स नॉट फॉर द ओनली क्लास 12th और ओनली क्लास 11th। व्हेनेवर वी हैव टू शो एनी ऑफ सीरीज इज ट्रू फॉर द n natural numbers, then you have to use the concept of PMI. जब किसी भी सीरीज को सभी नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई करना हो तो आप लोग हमेशा किसका यूज करते हैं, कंसेप्ट ऑफ पीएमआई का यूज करते हैं। और एज पर द कंसेप्ट ऑफ पीएमआई आप लोग 11th में स्टडी कर चुके हैं। एज पर द कंसेप्ट ऑफ पीएमआई वी ऑलवेज गो थ्रू द 3 स्टेप्स। फर्स्ट वन n equals to 1, और जब हम n equals to 1 पुट करते हैं तो हमें ये शो करना पड़ता है कि ऑन पुटिंग n equals to 1 the conditions are satisfied. Then we assume that when n equals to k, then it will also satisfy the given condition. And then later on we will show that n equals to k plus 1 is also verifying the condition. So 3 steps होते हैं, पहले n equals to 1, फिर n equals to k, फिर n equals to k plus 1, जिसमें से आपको n equals to 1 शो करना पड़ता है, n equals to k plus 1 also शो करना पड़ता है, और n equals to k जो होता है वो आप लोग एज्यूम करके चलते हैं। So यहाँ पर भी क्योंकि ये हमें n belongs to n सभी नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई करना है, so that's why we will use the concept of PMI. So for being using the concept of PMI, first of all we will go for 3 steps: n equals to 1, n equals to k, and n equals to k plus 1. Let's start. आइए, since क्योंकि ai plus b of a whole raised to power कितना n is equals to a raised to power n into i plus n into a raised to power n minus 1 into b of a. क्लियर है? तो पहले n equals to कितना पुट करना है, n equals to k. On putting n equals to k, on putting n equals to 1, sorry, तो ai plus ba whole raised to power 1 is equals to a raised to power 1 लिखने की जरूरत नहीं है into i plus 1 into a raised to power 1 minus 1 into b of a. Clear to everyone? उसके बाद ai plus b of a is equals to this one is ai और a raised to power 0, और किसी चीज की पावर 0 आंसर हमेशा कितना होता है, 1, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो 1 into ba, तो b हो गया, that means left hand side equals to right hand side. So n equals to 1, so n equals to 1 satisfies it, satisfies it. Now suppose n equals to कितना बेटा जी, now suppose n equals to k also satisfies it, कि n equals to k भी satisfy करता है। अब आप लोगों ने assumption कर लिया कि n equals to k satisfy करता है। जब n equals to k satisfy करता है तो on putting n equals to k, the left hand side and right side will be equal बेटा। So therefore it is equals to ai plus ba whole raised to power k is equals to a raised to power k इसमें into i plus k into a raised to power k minus 1 into b of a. आप लोगों ने ये assumption कर लिया, this portion is equal to this,
क्लियर? पक्का? आप लोगों का assumption है कि ये पोर्शन आपस में कैसे है, इक्वल है, ये बोथ आर इक्वल। नाउ अब कितना पुट करना है, n इक्वल्स टू कितना, k प्लस 1। नाउ ऑन पुटिंग n इक्वल्स टू k प्लस 1, नाउ ऑन पुटिंग n इक्वल्स टू k प्लस 1। सो देयरफॉर इसमें ai प्लस ba होल रेस्ट पावर कितना बेटा, k प्लस 1 इज इक्वल्स टू a रेस्ट पावर कितना बेटा, k प्लस 1 इंटू i प्लस k प्लस 1 इंटू a रेस्ट पावर k प्लस 1 माइनस 1 इंटू ba। दैट इज, इसका मतलब ai प्लस ba होल रेस्ट पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू शोन a रेस्ट पावर k प्लस 1 इंटू i प्लस k प्लस 1 इंटू a रेस्ट पावर k इंटू ba। वी हैव टू शो इट, हमें ये चीज शो करनी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज क्लियर है, क्योंकि ये कंसेप्ट आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है। वी हैव टू शो इट, आप लोगों ने कंसेप्ट स्टडी किया हुआ है। क्लियर? तो आज लोग आपने पहले n इक्वल्स टू 1 पुट किया और शो कर दिया कि n इक्वल्स टू k पुट करने से लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल होगा। फिर आप लोगों ने n इक्वल्स टू k पुट किया और ये असम्पशन कर ली कि व्हेनेवर n इक्वल्स टू k देन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड वुड बी इक्वल। एंड फाइनली ऑन पुटिंग n इक्वल्स टू k प्लस 1, जब आपने n इक्वल्स टू k प्लस 1 पुट किया देन दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस एंड वी हैव टू दिस पार्टिकुलर एलिमेंट। आपको ये शो करना है, सिंस आपको ये इसी पर शो करना है। बड़े गौर सुनना, सिंस क्योंकि हम लोग ai प्लस में ba होल रेस्ट पावर k प्लस 1 को ai प्लस ba होल रेस्ट पावर k इंटू ai प्लस ba होल रेस्ट पावर 1 कह सकते हैं। ऑफ कोर्स, क्यों? मल्टीप्लाई में बेस है तो पावर वुड बी एडेड। अगर ये बेस और ये बेस आपस में ऐड सेम है तो मल्टीप्लाई का बेस सेम है तो पावर हमेशा आपस में क्या होती है, ऐड होती है। सो दैट्स व्हाई पावर वुड बी एडेड। सो देयरफॉर देखो ध्यान से बेटा जी, और ये पोर्शन किसके इक्वल था, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इसको फर्स्ट मान लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये पोर्शन जो ai प्लस b होल स्क्वायर k था वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया a रेज़ टू पावर k इनटू i प्लस k इनटू a की पावर k माइनस 1 इनटू ba। बेटा मैंने जो ये असम्पशन किया था इस असम्पशन को यहां पुट कर दिया इनटू ये ai प्लस में b ऑफ a ऐसा का ऐसा। क्लियर टू एवरीवन? अब मल्टीप्लाई करते हैं इसकी इनटू बेटा जी इससे, जब इसकी इनटू इससे करेंगे तो कितना हो गया, a रेज़ टू पावर k है, a रेज़ टू पावर 1 है, मल्टीप्लाई बेस है पावर हमेशा ऐड, a रेज़ टू पावर k इनटू a रेज़ टू पावर 1 a रेज़ टू पावर k प्लस 1 i इनटू i कितना हो गया बेटा, i स्क्वायर प्लस अब इसकी इनटू इससे करनी है तो a रेज़ टू पावर k इनटू i इनटू b ऑफ a प्लस इसकी इनटू इससे, जब इसकी इनटू से k तो ऐसा कैसा k, a की पावर k माइनस 1 a की पावर 1 कितना हो गया बेटे, a की पावर k, उसके बाद b a और i एंड फाइनली जब इसकी इनटू से करेंगे k एज इट इज a की पावर k माइनस 1 a की पावर k माइनस 1 इनटू b को b से कर दो b स्क्वायर और a को a से कर दो कितना हो गया a स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुई? दोबारा सुनो, ai प्लस ba होल स्क्वायर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू ai प्लस ba होल स्क्वायर k इनटू a प्लस b होल स्क्वायर 1। क्यों? मल्टीप्लाई बेस से पावर हमेशा आपस में ऐड। और ये पोर्शन आप लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट में असम्पशन किया होगा कि ai प्लस ba होल स्क्वायर k इज इक्वल्स टू a रेज़ टू k इनटू i प्लस b और k इनटू a रेज़ टू k माइनस 1 इनटू ba। सो ये पोर्शन मैंने यहां रिप्लेस कर दिया इनटू a प्लस b, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। बड़े गौर से बेटा, क्योंकि यहां पर हमको a स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक मिनट का, हाँ जी, यहां पर हमको a स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि प्रॉपर्टी है सिंस, क्योंकि i का स्क्वायर इक्वल्स टू हमेशा कितना होता है i स्क्वायर इक्वल्स टू i और i into a is always equals to कितना बेटा जी a। क्लियर है? एंड यहां पर a स्क्वायर निकालते हैं, a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a into a मैट्रिक्स थी कितनी बेटा, a थी 0 1 0 into 0 1 0 0। मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया कंप्लीट आ गया 0 0 0 और 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां ये प्रॉपर्टीज हम लोगों को पता है सिंस i स्क्वायर इक्वल्स टू i होता है, i into a इक्वल्स टू a होता है, a स्क्वायर इक्वल्स टू a into a होता है और a था कितना बेटा जी 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0। मल्टीप्लाई कर दिया 0 0 0 0, मल्टीप्लाई आप लोग सीख चुके हैं। सो दैट्स व्हाई दिस कंप्लीट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर दिस पोर्शन, सो ये वाला पोर्शन, सो ai प्लस ba होल रेज़ टू पावर कितना बेटा k प्लस में 1 इज इक्वल्स टू, गौर सुना, ये ai और एक का k प्लस 1
ए स्क्वायर के प्लस 1 इंटू आई इसके कितना हो गया आई के बराबर। क्लियर है? उसके बाद बेटा ए रेस्ट को कितना के, ए रेस्ट को के इंटू आई इंटू बी, आई इंटू ए, ये बी तो ऐसे रहेगा, आई इंटू ए, ये बी तो ऐसे इंटू कितना ए, प्लस में बेटा ये के एस ए की पावर के एस ए के इंटू ए की पावर के इंटू बी एस और ए कितना हो गया ए, बी ऑफ ए हो गया बेटा, प्लस में बेटा ये के एस ए की पावर कितना के माइनस में 1 इंटू बी स्क्वायर और ए से कितना है बेटा 0, तो ये कंप्लीट कितना बन जाएगा 0। इस दोनों में देखो ध्यान से बेटा गौर ना, इन दोनों के अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर कॉमन कितना हो गया ए स्क्वायर के कॉमन, बी कॉमन और ए कॉमन, तो इधर कितना ये ऐसा कैसा है कितना बताओ, ये ए आई प्लस में बी ए होल रेस्ट पावर कितना बेटा के प्लस 1 इज इक्वल टू ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस हाँ जी ए की पावर के कॉमन ले लिया, बी कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा बेटा यहाँ रहेगा 1 यहाँ के, तो के प्लस में कितना 1। तो देखो देखिए आप प्रूव करना था ए आई प्लस बी होल स्क्वायर के प्लस 1, ए आई प्लस बी होल स्क्वायर के प्लस 1 इक्वल्स टू ए रेस्ट को के प्लस 1 ए रेस्ट को के प्लस 1 इंटू आई प्लस प्लस के प्लस 1 के प्लस 1 ए रेस्ट को के बी ए, दैट मींस इसका मतलब n इक्वल्स टू के, दैट मींस n इक्वल्स टू के प्लस 1 आल्सो satisfies it, satisfy करता है, hence we can say that, हमने यहाँ पे PMI वर्ड नहीं लिखना, hence we can say that हम कह सकते हैं कि AI प्लस में BA होल स्क्वायर कितना K इज इक्वल्स टू कितना बेटा A स्क्वायर K और n इज इक्वल टू A स्क्वायर n इंटू I प्लस में n इंटू A पावर n माइनस 1 इंटू BA फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। क्लियर? दोबारा सुन लें इस क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने क्वेश्चन पहले दिया था चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर से ना, या तो क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा या 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 6 मार्क क्वेश्चन 3.4 सेशंस बनता है और 1 और 2 मार्क क्वेश्चन जो है वो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं से ही बन सकते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 3 में बहुत छोटी छोटी चीजें, इनइक्वालिटीज हो गई, मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करना हो गया या कंपैरिजन करना हो गया, एक्स वाई की वैल्यू निकालना हो गया एटसेट्रा, तो इन क्वेश्चन के चांस थोड़े से कम बन जाते हैं। इट डजंट मीन कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चांसेस थोड़े से कम बन जाते हैं, बट फिर भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। आइए a equals to this one and show that ai plus ba whole square n is equals to a raised to power n into b or I plus n into a square n minus 1 into ba, ये शो करना है for all n belongs to n। क्लियर? ये आपको शो करके चल रहा है सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, एंड whenever we have to show any of series is verifying for all the natural numbers, then we have to go through the concept of PMI, and as per the concept of PMI we have to go through the 3 steps. First one, n equals to 1, n equals to k and n equals to k plus 1. n equals to 1 we have to show it, n equals to k we have to assume it, and n equals to k plus 1 we have to show it. So that's why first of all on putting n equals to 1, n equals to 1 put किया ai plus ba whole square 1 हो गया, a square 1 लिखने की जरूरत नहीं into I plus n 1 into a power 1 minus 1 into ba, तो ये a square 0 हो गया और किसी चीज की पावर 0 आंसर इज 1, so that's why ai plus b is equal to a plus b, that's why left hand side equals to कितना हो गया right hand side, so n equals to k plus 1, okay, so n equals to 1, माफी चाहूंगा, n equals to 1 satisfies it. Now suppose that n equals to कितना k also satisfies it, so ai plus b whole square k equals to a square k into I plus k into a square k minus 1 into b। क्लियर हो रहा है? ये चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, बस हल्का सा कंसेप्चुअल। नाउ ऑन पुटिंग n इक्वल्स टू k plus 1 a I plus b होल स्क्वायर n का मतलब है k plus 1, a की जगह a ऐसा कैसा n का k plus 1 into I, n का k plus 1 a की पावर k plus 1 minus 1 into b of k, minus 1 पॉजिटिव का कैंसिल हो गया, दिस वन इज इक्वल टू दिस एंड वी हैव टू शो इट, हमें ये शो करना है। नाउ अब क्योंकि a raised to power a I plus b होल स्क्वायर k plus 1 कैन बी रिटन एज द a I plus b होल स्क्वायर k into a plus b होल स्क्वायर का 1, और बेटा ये पोर्शन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने लेट किया था a स्क्वायर k into I प्लस में k into a स्क्वायर k minus 1 into b, और ये ऐसा कैसा बेटे मल्टीप्लाई करने इतना पोर्शन आ गया, मल्टीप्लाई करना जानते हैं आप लोग बेटे। या उसके बाद क्योंकि i स्क्वायर इक्वल्स टू I होता है, i into a होता है और a into I वही a होता है, और a स्क्वायर यहां पर a स्क्वायर जो पड़ेगी और a स्क्वायर निकालने के लिए a हमें पता है
सो हम a into a करते हैं, a स्क्वायर निकल जाएगा, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 1001 1001 सॉल्व किया 0 आ गया, दैट मींस कंप्लीट a स्क्वायर इक्वल टू 0. सो देयरफॉर ai plus b होल स्क्वायर k plus 1 इक्वल्स टू a की पावर k plus 1 into i से कितना था i इक्वल a रेज़ पावर k ऐसा कैसा b एज इज i into a कितना हो गया a बेटा, ये k ऐसा कैसा a की पावर k b ऐसा कैसा, तो a into i a हो गया, और दिस पोर्शन into a स्क्वायर इक्वल टू 0. सो बेटा इसमें कॉमन कितना आ गया, a की पावर k, a की पावर k कॉमन, b और b कॉमन, a और a कॉमन, a की पावर k b a कॉमन, यहां पे कितना आ गया 1 और यहां पे k, तो k plus 1. सो ये पोर्शन वेरीफाइड हो गया, हेंस n इक्वल्स टू k plus 1 ऑल सेटिस्फाइज. जब n इक्वल्स टू 1 था सेटिस्फाई, n इक्वल टू k अज्यूम कर लिया, n इक्वल्स टू k plus 1 प्रूव कर दिया. सो इस तरह से बेटा जी कांसेप्ट ऑफ पीएमआई प्रूव हो गया, और कांसेप्ट ऑफ पीएमआई प्रूव हो तो इसका मतलब सीरीज जो है वो सभी नेचुरल नंबर के सेटिस्फाई है. सो हेंस दिस सीरीज, दिस वन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स. यहां आप लोग ये ना समझें, प्लीज गौर कीजिएगा, यहां आप लोग ये ना समझें कि यार वी आर डूइंग द मैट्रिसेस एंड वेयर द कांसेप्ट ऑफ पीएमआई हैज बीन हियर. तो बेटा इस डजंट मीन नहीं होता कि कहीं आपने पीएमआई पढ़ लिया 11th क्लास में तो दोबारा यूज नहीं होगा. whenever you have to show any of series for the all natural number, then definitely you have to go through the concept of PMI. क्लियर है? और इट्स नॉट कंपल्सरी कि 12th में आया तो फर्स्ट ईयर में नहीं आएगा, सेकंड ईयर में नहीं आएगा, ये बेटा कहीं भी हो सकता है. ठीक है, इट्स अ बेसिक फिनोमेनन, बेसिक कांसेप्ट है. सो डोंट वरी, और कहीं भी आप बस माइंड रख के चलो, whenever we have to show any series for the all natural number, then it will be proved by the PMI. Clear to everyone? Now move to the second question. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग बेटा. इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यू कैन आल्सो टेक इट, बाकी मैं इसको डिलीट कर देता हूं. आइए now come to second question. Same as the second question is given, same as it is. क्वेश्चन सेकंड ऐसा कैसा है, डोंट वरी, सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे कैसे हैं. ठीक है, आओ क्वेश्चन सेकंड देखते हैं. क्वेश्चन सेकंड मैट्रिक्स, और सेकंड क्वेश्चन मैट्रिक्स ए दी हुई है 1 1 1 1 1 1 एंड शो दैट, और शो करना है एंड शो दैट a raised to power n is equals to 3 raised to power n minus 1, 3 raised to power n minus 1, 3 raised to power n minus 1. Same here, 3 raised to power n minus 1, 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 and 3 raised to power n minus 1 for all. गौर सुनना, यहाँ पे लिखा हुआ है for all n belongs to n. ठीक है, for all n belongs to n, for all बोलते हैं इसको बेटा, for all n belongs to n. Same as this, because आपको भी पहले बताया कि whenever you have to show any of the series true for the all natural numbers, then you have to use the concept of PMI. So therefore हमें यहाँ पे भी किसका यूज करना है, PMI का यूज करना है. A is equal to this and A is equal n equal to this one. आओ, since क्योंकि A raised to power n is equal to कितना बेटा 3 raised to power n minus 1, 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 and 3 raised to power n minus 1. On putting n equals to कितना बेटे, on putting n equals to 1. जब n equals to 1 पुट करें तो कितना हो गया a raised to power 1, और a raised to power 1 को आप a कह सकते हैं. a is equals to कितना बेटा 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 raised to power 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 0, 0 and 0. और किसी की पावर 0 कहां से कहां आता है 1. ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. बेटा जब आपने गौर, जब आपने n 1 पुट किया तो a इक्वल टू कितना आ गया, इतना आ गया, और ये तो गिवन था बेटे. गौर से क्या कहा, जब n इक्वल्स टू 1 पुट किया देन a इक्वल्स टू कितना आ गया 1 1 1 1 1 1 1 1 which was given. So that's which is true. So it is true, which is true, which is given. So n equals to 1 satisfies it. n equals to 1 इसको satisfy करता है. क्लियर है? Now suppose n equals to कितना, now suppose n equals to k also satisfies it. अब ये भी लेट कर ले कि n equals to k भी satisfy करता है इसको. So therefore a raised to power कितना k is equals to कितना हो गया बेटा
3 raised to power k minus 1, 3 raised to power k minus 1, 3 की 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 power k minus 1, 3 raised to power k minus 1, 3 raised to power k minus 1 और 3 raised to power कितना k minus 1. ये आपका assumption है. This one is equal to this one. Now on putting n equals to कितना? Now on putting n equals to k plus 1. n equals to k plus 1 put करो. इसे put करो. So a raised to power कितना k plus 1 is equals to 3 की power k plus 1 minus 1, 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 3 raised to power k plus 1 minus 1, 3 raised to power k plus 1 minus 1, 3 raised to power k plus 1 minus 1, k plus 1 minus 1 और 3 raised to power k plus 1 minus 1. ठीक है बेटा? तो कितना हो गया? a raised to power कितना k plus में 1 is equals to कितना हो गया बेटा? 3 की पावर k, 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 3 की पावर k into 3 raised to power k, 3 raised to power k और 3 raised to power कितना k. ये we have to show it. हमें ये शो करना है. We have to show it. हम ये चीज शो करनी है. क्लियर है? नाउ ये शो करना है तो यहीं छोड़ दो. सिंस क्योंकि आप जानते हैं पीछे कर चुके थे. सिंस a raised to power k plus 1 को आप लोग a raised to power k into a raised to power 1 कह सकते हैं. ऑफ कोर्स कह सकते हैं. और a raised to power k कितना था? a raised to power k ये था. असम्पशन था आपको डाल. a raised to power k था 3 की पावर कितना k minus 1, 3 की पावर k minus 1, 3 की पावर k minus 1, 3 raised to power 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 k minus में 1, 3 raised to power k minus में 1, 3 raised to power k minus में 1. और यहां पर 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1 मिला. क्लियर उत्तर? पक्का कंफर्म? आपको समझाने के लिए ना, आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए लेट कर दिया. आपको समझाने के लिए लेट 3 raised to power k minus 1 को थोड़ी देर के लिए m लेट कर दिया. तो बेटा यहां पे कितना हो गया? m m m m m m m m m. ये आपको समझाने के लिए. अगर आप चाहते हैं कि लेट ना करो मत लेट करो, लेकिन m लेट करना थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा. अब मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बताया था. मल्टीप्लाई करने के लिए पहली मैट्रिक्स के मैट्रिक्स एलिमेंट छेड़ देंगे. दूसरे से कॉलम उठाना है. कॉलम था कितना बेटा? कॉलम था 1 1 1. तो 1 यहां आ गया, 1 यहां, 1 यहां. मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया. तो कितना हो गया? a raised to power k plus में 1 is equals to, क्योंकि आपने m ऐड किया गौर से ना, ये हो गया m plus m plus m, ये m plus m plus m, m plus m plus m. फिर आप सेकंड कॉलम उठाओ, वही आएगा m plus m plus m, m plus m plus m और m plus m plus m. एंड फाइनली m plus m plus m और m plus m plus m और m plus m plus m. क्लियर? a raised to k plus 1 कितना हो गया बेटा? 3m 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 और 3m. क्योंकि m था कितना बेटा जी? m था 3 की पावर कितना? k minus 1. सो 3m कितना हो गया? 3m हो गया 3 into 3 की पावर k minus 1. मल्टीप्लाई मतलब बेस से पावर हमेशा आपस में ऐड. सो 3 की पावर कितना हो गया? k. सो देयरफॉर a raised to k plus 1 कितना हो गया? a raised to k plus 1 equals to 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 raised to power k, 3 raised to power k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k और 3 की पावर कितना? यही तो प्रूव करना था. a की पावर k plus 1 इक्वल कितना होता है? सो n इक्वल्स टू कितना? सो n इक्वल्स टू k plus 1 also satisfies it. Hence the given matrix is true for all n belongs to n बेटा जी. क्लियर है? दोबारा सोच लीजिए बेटा जी, इसको दोबारा समझाते हैं कि आपको a इक्वल कितना दिया हुआ था? मैट्रिक्स a थी ये मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स a raised to power n थी कितने? इतने बेटा जी. आपको ये शो करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. क्योंकि मैं दोबारा रिपीट करता हूं क्योंकि आपको ऑल नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करना है. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज द कांसेप्ट ऑफ पीएमआई. और पीएमआई कांसेप्ट यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट n इक्वल्स टू 1, फिर n इक्वल्स टू k, फिर n इक्वल्स टू k plus 1. n इक्वल्स टू 1 पुट किया. जब n इक्वल्स टू 1 3 पावर 0 3 पावर 0 और किसी पावर 0 आंसर कितना आता है? 1. तो 1 1 1 1 1. तो a इक्वल्स टू 1 1 1 आ गया जो गिवन था. सो दैट्स व्हाई n इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाइज द कंडीशन. नाउ सपोज n इक्वल्स टू कितना? k also satisfies. So 3 raised to a raised to k equal कितना हो गया? 3 की पावर k minus 1, 3 की पावर k minus 1, 3 की पावर k minus 1. Similarly 3 raised to k minus 1, k minus 1, k minus 1.
ओके, ये आ गया, आपने assumption किया कि a रेज़ टू पावर k जो है वो इसके इक्वल है। फिर कितना पुट किया 3 रेज़ टू पावर n कितना k प्लस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 k प्लस 1 माइनस 1 k प्लस, तो ये हो गया a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k दिस वन। वी हैव टू शो इट, हमें ये शो करना है, और इसे शो करने के लिए a की पावर k प्लस 1 को आपने ब्रेक कर दिया a की पावर k इनटू a की पावर 1, और a की पावर k कितना था, a की पावर k ये था बेटा जो assumption किया था, इनटू कितना 1 1 1। क्योंकि आपको समझाने के लिए बार बार आपको लिखना ना पड़े, कंफ्यूज ना हो, सो 3s को k माइनस 1 को थोड़ा m ऐड कर लिया। अब ये m हो गया m m m m m m मल्टीप्लाई करना है, सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस m प्लस m m प्लस m प्लस m मल्टीप्लाई आपको जानते हैं, सो ये हो गया 3m 3m 3m, क्योंकि m की वैल्यू कितनी k माइनस 1, सो 3m की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, तो मल्टीप्लाई बेस सेम है तो आपस में ऐड होते हैं, तो 3 की पावर कितना होगा k, सो 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k, सो a रेज़ टू पावर k प्लस 1 इक्वल टू 3 की पावर k प्लस 1 बेटा। क्लियर है? तो इस तरह से ये n इक्वल्स टू k प्लस 1 सेटिस्फाई कर गया, हेंस दिस कंसेप्ट दिस मैट्रिक्स इज ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रूव हो गया हो, समझ आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज कॉपी कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं आपको सर कर देता हूं।